Let us continue the lesson. Indigo, page number 51, from the beginning. Lesson Indigo, page number 51, from the beginning. Rajendra Prasad, Brij Kishore Babu, Maulana Masraf Haq, and several other prominent lawyers had arrived from Bihar. They conferred with Gandhi, talked with Gandhi. What would they do if he was sentenced to prison? Gandhiji asked. गांधी जी ने उसे पूछा, अगर मुझे कोर्ट अरेस्ट हो गया तो क्या करोगे? मुझे जेल भेजा है तो आप लोग क्या करोगे इनके लिए? Why? The senior lawyer replied, they had come to advise and help him. If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. एक ने बोला, अगर आपको जेल भेजा है तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे? हम अपने अपना घर पे जाएंगे. What about the injustice to the sharecroppers? गांधी demanded. फिर ये sharecroppers का क्या होगा? The lawyers withdrew to consult. Rajendra Prasad was recorded and upshoot of their consultations. Recorded means लिखित में रखा. Upshoot means result. गांधी जी से जो संभाषण हुआ उसको लिखित में रहा. They thought among themselves that Gandhi was totally a stranger and yet he was prepared to go to prison for the sake of the peasants. If they, on the other hand, being not only residents of the adjoining districts, but also those who claimed to have served them, these peasants, should go home, it would be shameless, it would be shameful desertion. तो राजेंद्र प्रसाद सब कुछ लिखित में रखने के बाद यूं बोला, दे थॉट अमंग्स देमसेल्फ, वो आपस में चर्चा किया. देखो, गांधी जी इज टोटली ए स्ट्रेंजर एंड ही विलिंगली एक्सेप्टेड टू गो टू जेल फॉर दिस शेयरक्रोपर्स. हम इसके साथ आसपास में रहने वाले, इनको न्याय दिलाने के लिए प्रॉमिस किया हुआ लोग, और उन लोग ऐसा कहें और फिर इसका क्या होगा? इससे निंदनीय कोई काम तो है ही नहीं. They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him to jail. वो वापस गांधी जी के पास जाके गांधी जी से कहा कि हम भी आपके साथ जेल जाएंगे. The battle of Champaran is won, he exclaimed. अगर ऐसा है तो हम जीत गए. Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest. फिर कागज़ निकाल के एक एक कागज़ में ये लिखा, हम लोग पर्सनली कोर्ट अरेस्ट होने के लिए तैयार है. Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped
कुछ दिन बाद गांधी जी को एक रिटर्न कम्युनिकेशन मिला है लेफ्टिनेंट गवर्नर से, जो केस या शेयरकोप्स के सिलसिले में लड़ रहे थे, वो खारिज कर दिया गया। ड्रॉप्ड मीन्स खारिज करना। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। इस तरह से अपने भारत में पहली बार डिसोबीडियंस सक्सेस हो गया। डिसोबीडियंस मीन्स डिसोबीडियंस। अवज्ञा आंदोलन कहते हैं इसको। सरकार के ऑर्डर को ना मानना, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑर्डर को ना मानना, आज्ञा का उल्लंघन करना, ये जो सिस्टम भारत में पहली बार विजयी हुआ। Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. इस घटना के बाद गांधी जी और अन्य लोग मिलकर इन लोगों की समस्या का और निवारण करने के लिए सोचते आया और क्या प्रॉब्लम है। Depositions by about 10,000 persons were turned down. Deposition means बयान, statements. इतने लोगों के स्टेटमेंट लिया and notes made on other evidence. Documents were collected. The whole area throbbed with the activity of the investigators and the vehement protest of the landlords. Throbbed means धड़कना कहता है, beat, with the activity of the investigators and vehement loud protest of the landlords. बड़ा विरोध किया। Gandhi had 4 protracted interviews with the lieutenant governor, who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecropper situation. गांधी जी को 4 बार लॉन्ग इंटरव्यू किया। प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यू मीन्स लॉन्ग इंटरव्यू, और उसमें यह डिसाइड किया, अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉप सिचुएशन। इनके प्रॉब्लम का खोज करने के लिए एक ऑफिशियल कमीशन को नियुक्त किया है। The commission consisted of landlords, government officials, and Gandhi as the sole representative of the peasants. इसमें गांधी जी भी एक मेंबर था एक कमीशन का, किसान के साइड से। Gandhi remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months and then again for several short visits. गांधी जी को इस केस को लेके इतने समय तक यहाँ बिताना पड़ा। And the visit undertaken casually on the entreaty of the unlettered peasants in the expectation that it would last a few days, occupied almost a year of Gandhi's life. इन अनपढ़ किसानों का बात को सुधारने के लिए कुछ दिनों के लिए पूरा करने का विचार से आया हुआ गांधी जी को करीब 1 साल इस केस को निपटाने का समय लिया। The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters, and when they saw this, they agreed in principle to make refund to the peasants. But how much must we pay?
दे आस्क्ड गांधी। कमीशन तो ये देखा है तो बस इन लोगों से पहले पता है, बस पैसा ले रखा था लैंडलॉर्ड, उसका क्या होगा, हमें वो पैसा वापस डिमांड करना। दे थॉट he would demand the repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. लोगों ने सोचा शायद गांधी जी पूरा पैसा मांगेगा। He asked only 50%. गांधी जी केवल 50% डिमांड किया। There he seemed adamant. उसमें दृढ़ रहा। राइटर रेवरेंड J.Z. Hod, ये ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण, who observed the entire episode to close range, thinking probably that he would not give way. The representative of the planters offered to refund to extent of 20%, and his amazement, Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock. लेकिन उन लोग मिलकर ये बोला 50% तो संभव ही नहीं है और हम 25% देने को तैयार है। गांधी जी तुरंत उसको मान भी लिया। दिस सेटलमेंट वाज अडॉप्टेड यूनानिमसली बाय द कमीशन। ये कमीशन मान लिया। Gandhi explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. गांधी जी ने उनको समझा, हम पैसा के लिए थोड़ी लड़ा, कम से कम लैंडलॉर्ड्स इतना तो मान लिया कि बस हमें थोड़ा बहुत देंगे, पैसे मैंने मत रखना। अगर तुम लोग ये केस लड़ते रहे तो क्या था, कुछ भी नहीं मिलता। हमें पैसा मिले नहीं मिले ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, वही मन में रखो। Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law. Now, the peasant saw that he had rights and defenders. He learned courage. बस किसान को अभी हिम्मत मिला अपने अवकाश को, अपने डिमांड को सामने रखने, उसके लिए लड़ने के लिए उन्हें हिम्मत मिला। Events justified Gandhi's position. Within a few years, the British planters abandoned their estate. कुछ साल के बाद उन लोग जो किसान से ज़मीन ले रखा था वो भी छोड़ दिया। विच reverted to the peasants, वो वापस किसान को मिल गए। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड। इस तरह से ही इंडिगो शेयर क्रॉपिंग हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। Gandhi never contented himself with large political or economic solutions. He saw the cultural and social backwardness in the Champaran village and wanted to do something about it immediately. गांधी जी को वहाँ रहते ही और कोई बात समझ में आ गया, सामाजिक और कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस चंपारण में बहुत था, तो उसके लिए भी कुछ करना है। He appealed for teachers, Madhav Desai and Narhari Parikh, two young men who had just joined Gandhi as disciples, and their wives volunteered for the work. गाँव के सपोर्ट मिले। दो जने यहाँ तो बता दिए, टीचर्स माधव देसाई, नरहरि पारिक और उनके पत्नी लोग उसको साथ दिया। तो उन लोगों ने बोला सामाजिक कार्य को और सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम साथ देंगे। गांधी जी यंगेस्ट सन several more came from Bombay, Pune and other distant parts of the land. और लोग भी इसको देख के उसके पीछे आए।
Devdas, Gandhiji's youngest son, arrived from the ashram and so did Mrs. Gandhi. गांधी जी के बेटे और पत्नी भी वहाँ आए. Primary schools were opened in 6 villages. Kasturbai taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation. कस्तूरबा गांधी गाँव वालों को और पर्टिकुलरली लेडीज़ को सैनिटेशन के बारे में समझाया. हेल्थ कंडीशन वेयर मिसरेबल. गांधी जी गोट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 months. हेल्थ कंडीशन भी बेकार थे. गांधी जी ने एक डॉक्टर से बात किया, वो तो फ्री सेवा करने का तैयार हो गया. एंड 3 मेडिसिन्स वेयर अवेलेबल, कास्टर ऑयल, क्विनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट. 3 तरह का दवाई उनके लिए तैयार किया. एनीबडी हु शोड ए coated tongue was given a dose of castor oil. अगर किसी को जीभ में प्रॉब्लम है उसको कास्टर ऑयल दिया करता था. एनीबडी विथ मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्विनाइन प्लस कास्टर ऑयल. एनीबडी विथ स्किन eruption रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कास्टर ऑयल. और किसी को मलेरिया है तो बस क्विनाइन और कास्टर ऑयल मिला के देते थे. और किसी को अगर स्किन eruption फोड़े फुंसी है तो उसको कोई ऑइंटमेंट और कास्टर ऑयल दिया करता था. गांधी नोटिस्ड द फिल्थी स्टेट ऑफ ह्यूमन्स क्लोथ्स. लेडीज़ के गंदे कपड़े देख के गांधी समझ लिया उसका फिजिकल कंडीशन भी हेल्थ कंडीशन भी सही नहीं है. ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट. गांधी जी ने कस्तूरबाई से बोला इसको समझा दो. वन वुमन टुक कस्तूरबाई इनटू हर हट एंड सेड, लुक देयर इज नो बॉक्स और कपबोर्ड हियर फॉर क्लॉथ्स. जब कस्तूरबाई उसको समझाए, एक लेडी उसको अंदर ले जाके बताए, देखो साहब हमारे पास कोई बॉक्स नहीं, कोई अलमारी नहीं, कुछ भी नहीं है. एंड द साड़ी आई एम वेयरिंग इज़ द ओनली वन आई हैव. उसके कहने का मतलब यही था, अगर वो साड़ी अगर साफ़ करना है तो हमें चेंज करने के लिए दूसरी साड़ी नहीं है. एंड ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी केप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच द आश्रम. चंपारण में रहने के वजह से साबरमती आश्रम का कोई देखभाल सही से नहीं कर पा रहे थे. ही सेंड रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स. गांधी जी ने आश्रम में लेटर लेके इन्फॉर्म किया, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई फाइनेंशियल मैटर है तो बता देना. Once he wrote to the residents that it was time to fill the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. एक बार उसने बोला जो टेम्पररी लैट्रिन्स बनाए हैं उसको भरना ज़रूरी है और दूसरा बनाना, अदरवाइज़ पुराने वाले में से बदबू आने लग जाएंगे. The Champaran episode was a turning point of Gandhi's life. What I did, he explained, was a very ordinary thing. I declared that the British could not order me about in my own country. गांधी जी बैठ के सोचा, बताया, मैंने जो किया एक छोटा सा कार्य, बस मेरा आशा इतना ही थी कि ब्रिटिश लोग मेरे लैंड में मुझे आदेश ना दें. But Champaran did not begin as an act of defiance. Defiance means disobedience. It grew out of an attempt to alleviate. Alleviate means समाप्त करना the distress of large numbers of poor persons. और उसके साथ साथ किसान के जो परेशानी है उसको भी दूर करना था. And this was the typical Gandhi pattern. His politics were intervened with the practical day-to-day problem of millions. गांधी जी ने जो काम शुरू किया आजकल भी पॉलिटिकल लेवल में बहुत काम आ जाता है. डिसोबीडियंट मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ऐसे कई बात आजकल भी
सत्याग्रह, ये सब कुछ गांधी जी के द्वारा बनाए हुआ चीज़ें हैं और आजकल भी काम सफल कराने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है. And it was not a loyalty of abstractions, it was a loyalty to living human beings. ऐसा कुछ फ़ायदा उठाने के लिए नहीं है, लेकिन और ह्यूमन बीइंग्स को इज्जत देने वाली बात है. In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free India who would stand on his own feet and thus make India free. उसके साथ यही भी था, to give a mold means give shape, a new freedom of India. उन्हें पता पड़ गया अभी आज़ादी के लिए लोग उसके साथ होंगे और we can immediately fight for our freedom and thus we can gain freedom of our country. Early in the Champaran action, Charles Frewer Andrews, the English pacifist who had become a devotee follower of Mahatma Gandhi, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiji Island. एक शांतिवादी थे इंग्लैंड के, चार्ल्स फ्रीयर एंड्रूस कहते हैं, उनको फिजी आइलैंड में अपना कुछ ड्यूटी के लिए जाना था. उससे पहले गांधी जी से विदा लेने आए, क्योंकि वो गांधी जी के साथ देने के लिए तैयार था. गांधी जी की जो बातों पर प्रभावित हुआ. गांधी's lawyer friend thought it would be a good idea for Andrews to stay in Champaran and help them. एक आदमी को समझ में आ गया, ये आदमी चंपारण में रहें और गांधी जी के सपोर्ट करने वाले, हो सकता है गांधी जी जाने के बाद हमारा मदद करें. एंड्रूस वाज विलिंग इफ गांधी एग्रीड, अगर गांधी मान जाएं तो इनका सेवा करने के लिए वो तैयार थे. बट गांधी वाज वेहेमेंटली अपोज्ड, लेकिन गांधी जी इसको स्ट्रांगली अपोज किया. ही सेड, You think that in this unequal fight, it would be helpful if we have an Englishman on our side. आपको क्या लगता है, इसी परिस्थिति में एक अंग्रेजी आदमी को हमारा काम करने के लिए दें तो वो उल्टा सारे काम बिगाड़ के जा सकता है. This shows the weakness of your heart. कोई बात नहीं, तुम्हारी जो दिल की कमजोरी है, ऐसा सोचना. The cause is just and you must rely upon yourself to win the battle. बात तो सही है, मैं बुरा नहीं मानता हूँ, तुम्हारा विचार भी सही है, लेकिन हमें आत्मनिर्भर रहना, स्वयं निर्भर रहना, सीखना होता है. और इसलिए दूसरा कोई हेल्पर आ गया तो फिर हम करें क्या, ये काम हमें करना है, वो उन्होंने सोचा. You should not seek a prop in Mr. Andrews because he happens to be an Englishman. उससे कोई प्रॉप भी नहीं लेना, हेल्प भी मत दे लेना किसी भी काम के लिए, क्योंकि वो अंग्रेज है. And he had read our minds correctly, राजेंद्र प्रसाद comments. राजेंद्र प्रसाद ने बोला, अरे यार देखो उनका मन में क्या क्या है, उसका दिमाग देखो. And we had no reply, इसलिए हम चुप रहा. गांधी जी in this way taught us ये लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस. इस तरह से गांधी जी हमें एक नया लेसन सिखाया, वो ये सेल्फ रिलायंस, जो मोदी जी आजकल डिक्लेयर किया कि बस आत्मनिर्भर भारत. अभी ऐसे ऐसे लिखने के लिए देंगे, अभी बीच में लिख के बताओ, वो करो ये करो, लिखने के लिए तैयार हो, जरूर आएंगे. आत्मनिर्भर रहना, self-reliance, Indian independence and help to sharecroppers were all bound together. ये सब एक दूसरे जुड़ा हुआ है और यही काम आगे आज़ादी का कारण बन गया. इंडिया आज़ाद हुए. ओके, लेट अस स्टॉप हियर.